Hello, welcome to the Manner Education. Welcome to this video. Now, in this video, we will discuss about critical reasoning. Most of the people are scared about critical reasoning because they feel like उन्हें ऐसा लगता है कि it is very difficult thing. It is not that easy or it is not that simple to solve or that is difficult to understand. See, basically, I'm here to explain you how you can easily solve the critical reasoning topic and easily solve the critical reasoning question. How to understand it, how to analyze it, how to make it easy. I will give you solution. Okay, so now be here, be in the video and watch the video till the end. You will learn how to solve critical reasoning question with the ease and with the easy understanding. That is the most important thing in the critical reasoning, that you could understand the question and decode the question and answer it. But before we move on, we have an important announcement to put forward that all the specific videos related to law, be it latest notification, updates, live paper analysis and workshops will be firstly available on Manual Law Entrance. तो अगर आप ये वीडियो Manual Law Entrance पर देख रहे हो तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो. इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन Manual Education channel, तो link for Manual Law Entrance is in the description. Kindly check the description. And if you want to start your preparations, you can simply call our number 8828581455 or 54 for live class and online session. For the classroom coaching, if you are in Mumbai, you can visit our centers Vasai, Dadar, Borivali, Thane, and we are soon coming up with a new center in Pune as well. You can also follow us on social media such as Telegram, Instagram, Facebook, and don't forget to subscribe the YouTube channel Manual Law Entrance और इसकी नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, so that you will be updated with the latest notifications. Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock tests, books and ebooks, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. So moving ahead to the concept, exactly what is the critical reasoning? Critical reasoning होता क्या है guys? Now here meaning of critical reasoning. See, critical reasoning basically अगर literal meaning में समझना है, then critical reasoning is something all about to understand or something like to analyze what exactly the problem is. When you say, see, जब आप ये बोलते हो ना कि critical reasoning, when you talk about critical is what? That is basically in depth. You can say in depthness, something like small parts भी understand होने चाहिए, very small parts. Critical thinking, it's a very small part, it's a very important crux that we should understand from the problem, right? So जब भी हम critical reasoning की बात करते हैं, so you should understand कि इसके behind या फिर इसके अंदर क्या reasoning है, क्या इसका understanding है, क्या logic है. That is the critical reasoning and you have to think critically. See, giving answers, critical reasoning के आंसर देने के लिए you should be able to think critically. That is most important thing. Now here, critical reasoning is all about systematically discovering, analyzing and solving the problem. पहले तो आपको understand होना चाहिए कि problem है क्या. Then you will analyze the problem, what exactly the problem, and then analyze the problem and then try to solve it. This section intends to assess your skills in identifying an argument, evaluating statements, reaching at conclusion and formulating an appropriate course of action. See, here you have something like this कि आपके पास एक statement होगा, something आपके पास एक argument होगा, there will be some conclusions, there will be some assumptions, there will be some course of action, and you have to understand what exactly the statement and what exactly the particular perfect argument for that should be. Like उसके लिए परफेक्ट आर्ग्यूमेंट क्या होनी चाहिए, क्या कंक्लूजन होना चाहिए. यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज द स्टेटमेंट, यू हैव टू फर्स्ट इवैल्यूएट द स्टेटमेंट एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट. सो वहाँ पे कंक्लूजन्स हो सकते हैं, मे बी कोर्स ऑफ एक्शन हो सकती है, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं. अब ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट, ये क्या है, ये सब क्या है, आगे चलते हैं, देखते हैं. क्रिटिकल रीजनिंग फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्बल सेक्शन. सी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्बल सेक्शन. बेसिकली गाइस, क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी exams because this covers lots of things and it is very easy to solve. Exactly why it is important, because it is easy to solve. See, this is your understanding that it is hard because you're thinking it is difficult, so it is difficult. Don't look it as a difficult. It is very easy if you understand the crux of the
topic. Now, statement and argument, statement and assumption, statement and conclusion, statement and course of action, cause and effect, so on are all the key chapters in critical reasoning. See, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं critical reasoning से. तो बेसिकली स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट होता है, स्टेटमेंट एंड assumptions होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन होते हैं, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, सो ऑन. ऐसे बहुत सारे और भी टाइप्स है, बट बेसिकली वी हैव टू cover some of the important topics over here. Now, what are the skill required to solve critical reasoning? solve करने के लिए या फिर critical reasoning को understand करने के लिए what exactly skills you need? See, first of all, inference. आपको infer करने आना चाहिए, inference निकालने आने चाहिए. What exactly the inference? Inference is आप कोई भी थिंग, कोई भी एक स्टेटमेंट हो, अगर आप उस स्टेटमेंट को रीड करते हो तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस स्टेटमेंट के ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए. जिसने वो स्टेटमेंट दी है, जिसने वो स्टेटमेंट लिखा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से इन्फरेंस निकालना, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझना, इसे कहते हैं इन्फरेंस. एग्जैक्टली द ऑथर्स का जो ओपिनियन है वो स्टेटमेंट को रीड करके अंडरस्टैंड करना और उसके ऊपर खुद एक अंडरस्टैंडिंग लेना, दैट इज एन इन्फरेंस. नाउ, आइडेंटिफिकेशन. हियर आइडेंटिफिकेशन मीन्स टू फाइंड आउट प्रॉब्लम, to identify first problem, what exactly the problem is, and then find out solution, identify the solution for it. Like एक statement दिया है, whatever the statement is, आप उस statement को understand करो, what exactly the statement is saying, what exactly the statement wants from you. So that is very important, because unless and until you don't know कि problem exactly क्या है, हमें क्या understand करना है, you will not able to answer that question. So next is finding out the right solution. See, एक बार क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया, क्वेश्चन डिकोड कर लिया, देन इट इज इजी टू गिव द सॉल्यूशन फॉर इट. नाउ नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एनालाइज करना होगा. एनालाइज करके आप क्या करोगे, यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन. नाउ, BSS understanding. See, this is a two-fold understanding, 2 or 3-fold or something like 4-fold understanding. There could be multiple dimensions of a one statement. एक ही स्टेटमेंट के मल्टीपल डायमेंशंस हो सकते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द परफेक्ट डायमेंशन यू शुड यूज देयर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग अहेड टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, देयर आर द broadly 4 categories of this question. Basically, it covers statement and conclusion, statement and argument, statement and assumption, and inference. See, there are the different thing, like conclusion is what? What is a conclusion? What is argument? And what is assumption? And what is inference? That is most important thing here. Now हमें ये समझना पड़ेगा कंक्लूजन होता क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या होती. सी, व्हाट एग्जैक्टली द कंक्लूजन इज, व्हेन यू रीड समथिंग, लाइक आप एक स्टेटमेंट रीड करते हो. इफ यू रीड एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट रीड करने के बाद व्हाट इज योर ओन अंडरस्टैंडिंग, आप उसमें खुद क्या अंडरस्टैंड करते हो, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू कंक्लूड, उस पूरे स्टेटमेंट में से आप क्या कंक्लूजन लेते हो, क्या कंक्लूजन निकालते हो, व्हाट यू थिंक अबाउट द स्टेटमेंट, दैट इज द कंक्लूजन. नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. बेसिकली आर्ग्यूमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. वन इज अ स्ट्रॉन्ग एंड अनदर वन इज वीक. 2 टाइप के आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं. बेसिकली आर्ग्यूमेंट इज व्हाट, समथिंग लाइक इन सपोर्ट एंड समथिंग लाइक इन अपोज. सो जो भी एक सपोर्ट में है दैट विल बी स्ट्रॉन्ग, एंड जो भी अपोज में है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, दैट कुड बी वीक. देन assumption क्या होता है. बेसिकली assumption इज, ना टू अंडरस्टैंड, बेसिकली समझो, देखो टेक्निकल टर्म्स है तो यू हैव टू बी गो इनटू टेक्निक. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. बेसिकली पहले उसको समझो व्हाट एग्जैक्टली इट इज इन नेचुरल सेंस, व्हाट एग्जैक्टली इट इज. assumption is what, when you think about assumptions, like you are assuming something, no? So while if there is one statement जो किसी फैक्ट के बारे में बोल रहा होगा, मे बी किसी सिचुएशंस के बारे में बोल रहा होगा, मे बी देयर कुड बी एनी इवेंट ओनली. सो वो स्टेटमेंट जिसमें वो इवेंट बोला गया है, जिसमें वो सिचुएशन दी गई है, what exactly the assumption behind that statement, that you have to understand. अगर वो assumption आपने understand कर लिया ना कि what exactly behind it, what the author assumes while stating that statement or something, that event, describing that event in the statement, you will be understand what exactly you should give answer to that. आपको आंसर क्या देना चाहिए उसके लिए, आप वो समझ जाओगे. सो व्हाट एग्जैक्टली द स्टेटमेंट एंड अजम्पशन इज, कि एक स्टेटमेंट जो दिया है, जिसमें जो इवेंट दिया है, उसके बिहाइंड ऑथर का क्या अजम्पशन था,
क्या अजम्पशन होना चाहिए, पॉसिबल अजम्पशन क्या होना चाहिए, दैट इज स्टेटमेंट एंड अजम्पशन. एंड द नेक्स्ट वन इज इन्फरेंस. जस्ट inference is what? Something like if you are reading the statement, and what you are learning from it, आपने क्या समझा, आपने क्या सीखा, that is inference. What can you infer from it? आप क्या उसमें से infer कर सकते हो, क्या उसमें से सीख सकते हो, that is the inference. Simple. Moving ahead. Now here is the first type, statement and argument. See, statement and argument, अब भी मैंने बताया argument is what? Could be in support of. एक स्टेटमेंट जो कुछ सपोर्ट कर सकती है, या फिर एक स्टेटमेंट हो सकती है जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है, कॉन्ट्राडिक्शंस दे सकती है. नाउ इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अ स्टेटमेंट कंसर्न विथ एन इश्यू इज गिवन. इश्यू दिया होगा मतलब प्रॉब्लम. हियर इज अ प्रॉब्लम आपको दिया होगा. स्टेटमेंट मीन्स व्हाट? दिस इज योर प्रॉब्लम. नाउ followed by statement certain arguments in favor of. See, in favor of means supporting, or against, that is opposing that statement. मतलब जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको दिया है, जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, उस स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट के आफ्टरवर्ड आपको आर्ग्यूमेंट्स दिए होंगे. उन आर्ग्यूमेंट्स में कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसको सपोर्ट करेंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसको अगेंस्ट या फिर अपोज करेंगे. नाउ नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द लॉजिकली करेक्ट आर्ग्यूमेंट. See, here you have to understand logically correct argument that could be in support of, that could be in oppose of, but you should understand what exactly logically correct argument here. Now moving ahead, basically two types of arguments. As I said, first one is what? Strong argument, and second one is what? Weak argument. Let's see what exactly the strong argument is. Strong argument hoti kya hai? Now here is a statement and strong argument. See, a statement is what? A statement is an information of a fact related to any general subject. There could be any general subject. See, basically here I am telling you one thing important कि यहाँ पर आप statement जो read कर रहे हो, whatever there will be a subject, आपको general understanding लेनी है. Don't get into the depth of the understanding or something like researching all over the things. No, it is only stick to the point. जो आपको statement में बोला गया है वहीं पे stick off होके आपको सोचना है. Now strong argument. What exactly the strong argument could be? An argument is called strong if it touches a practical and real aspects of the situation. एक जो argument strong होती है, जो strong argument होती है, that basically touches what? Practical and real aspect of the situation. Real aspect of the situation. मतलब जो स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग जो प्रैक्टिकल एंड रियल एस्पेक्ट है उनसे जो रिलेट कर पाए वो आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होती है. एज ए डिस्क्राइब्ड इन द स्टेटमेंट, इट इज बैक्ड अप बाय रीजंस एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू द situation. So if there is a statement and you have given the arguments, आपके पास arguments है, statements है, then वो statements में जो arguments दी होंगी, आपको जो आर्ग्यूमेंट ऑप्शन में दिया होगा उन आर्ग्यूमेंट्स में से वो आर्ग्यूमेंट्स आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगी जहां पर एक रीजन होगा उस आर्ग्यूमेंट के पीछे और एक फैक्ट बेस्ड आर्ग्यूमेंट होगी. एक तो वो रीजनड आर्ग्यूमेंट हो सकती है, एक तो वो फैक्ट आर्ग्यूमेंट हो सकती है. दैट कुड बी अ रियल फैक्ट ओनली, दैट कुड बी अ प्रैक्टिकल रीजन बिहाइंड दैट आर्ग्यूमेंट ऑल्सो. सो ये दोनों भी हो सकता है, मे बी दोनों भी हो सकता है, रीजन एंड फैक्ट दोनों भी हो सकता है. दिस इज अ हिडन अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड द आर्ग्यूमेंट दैट आई एम ट्राइंग टू गिविंग. देखो आपको क्या करना है, एक आर्ग्यूमेंट को रीड करते वक्त उसे इस तरीके से देखना है, कैन यू रिलेट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड रियल एस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट. क्या आप उसमें से जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, उसके बिहाइंड जो प्रैक्टिकल रीजंस है, जो फैक्ट्स है, क्या वो स्टेटमेंट्स को एग्जैक्टली रिलेट कर पाते हैं. दैट इज योर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. नाउ सी हियर द एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं. स्टेटमेंट क्या दिया है? शुड चिल्ड्रन बी लीगली मेड रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज. यहां पे क्या बोला है? क्या चिल्ड्रन को लीगली
इट इज इंपॉर्टेंट, हाँ, लीगली मेड रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज। मतलब पेरेंट्स को उनके ओल्ड एज में चिल्ड्रन जो है वो उनका केयर करने चाहिए, मतलब उनको संभालना चाहिए, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रही है। और ये जो है लीगली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मतलब इसके लिए लीगल प्रोविजंस होने चाहिए, ऐसे इस स्टेटमेंट का कहना है, पूछना है, ये क्वेश्चन कर रही है क्या चिल्ड्रन के ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए कि वो ओल्ड एज में अपने पेरेंट्स को संभाले, ये स्टेटमेंट बोल रही है। नाउ व्हाट कुड बी द स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हियर? सी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या दिया है? नो, taking care of a parents is a moral duty of the children and cannot be thrust upon them legally. See, अभी यहां पर जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रांग क्यों है वो समझो। बेसिकली जब हम ये बोलते हैं कि एक चिल्ड्रन को, अगर चिल्ड्रन जो है अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को, ओल्ड एज जो पेरेंट्स होते हैं उनको संभालना, ये चिल्ड्रन की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। First of all, that is a moral responsibility, and the next thing is, if it is thrust upon them by legal means, so it will be a just burden, ये burden बन जाएगा। and moral duty should not be a burden for someone. मॉरल ड्यूटी कभी किसी के लिए बर्डन नहीं बननी चाहिए, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो मॉरल ड्यूटी बर्डन बन जाती है देन इट इज डिफिकल्ट टू कंप्लाई विद द पर्टिकुलर लीगल प्रोविजन। तो इससे क्या होगा, उनकी जो मॉरल ड्यूटी है वो तो वो फुलफिल कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन अपोजिट वे में वो लीगल प्रोविजन को भी नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे। सो इफ दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, सो हाउ दे कैन कंप्लाई विद द लीगल प्रोविजन? ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो बेसिकली चिल्ड्रन की जो मॉरल ड्यूटी है, दे शुड अंडरस्टैंड कि उन्हें अपने पेरेंट्स को संभालना चाहिए, दैट इज देयर मॉरल ड्यूटी। So that is the reason this argument is covering all the dimension of the statement. जैसे कि एक तो ये moral responsibility है, ये भी cover कर पा रहे, and the second thing is it is completely legally अगर इसको abide किया जाता है then it is very difficult to comply with. Now moving ahead, see, a statement is an information of a fact related to any general subject. Statement is an information of a fact related to any general subject, जैसे हमने पहले देखा। Now what is a weak argument? See here, an argument is called weak if it is not directly related to the given statement and it does not address all the points put forward in a given statement. A weak argument is of minor importance or may be related to trivial aspect of the statement. See here, similar statement दी हुई है, should children be legally made responsible to take care of their parents during their old age. अब यहां पर एक weak argument क्या हो सकती है? See, yes, it is saying yes. Why? Such matter can only be solved by legal means. मतलब यहां पे एक ही फैक्टर को देखा जा रहा है, that is what, कि ये लीगली अगर अवॉइड हो जाता है then it is possible only. सो यहां पे क्या क्या इग्नोर किया जा रहा है? सी देखो यहां पे कितने पॉइंट्स इग्नोर हो रहे हैं। पहली बात, ये मॉरल ड्यूटी है, दिस इज अ मॉरल ड्यूटी। दूसरी बात, यहां पे ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, दे शुड डू इट, राइट। सो यहां पे ये दो मेन पार्ट जो है, जो क्रक्स है, उसको मिस किया जा रहा है। जस्ट थ्रस्टिंग बाय लीगल मीन्स ओनली इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। दैट मीन्स इट इज प्रेशराइजिंग द चिल्ड्रन टू take care of their parents. So now it is a weak argument. So what happens is, here they are not covering all the points, all the important aspect of the statement. यहां पर बोला है ना मेड रिस्पॉन्सिबल, अब रिस्पॉन्सिबल बनाना है, दैट मीन्स ये तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने की बात हो रही है। अदर देन दिस देयर इज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, राइट। सो दोनों भी एस्पेक्ट कवर यहां पर नहीं हुए हैं, दैट इज द रीजन कि यहां पे ये जो आर्ग्यूमेंट है ये वीक है। नाउ मूविंग अहेड, नाउ हियर इज अ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। Now this is another type of question, statement and conclusion. Here what happens, you are with the again
यू आर विद द स्टेटमेंट, आपके पास एक स्टेटमेंट होगा दैट इज गिवन इन अ क्वेश्चन ओनली, एंड देन फॉलोड बाय फ्यू कंक्लूजन सिमिलर एज द आर्ग्यूमेंट। जैसे आर्ग्यूमेंट्स में आपको एक स्टेटमेंट दी थी और वहां पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स थे, तो वहां पे से आपको राइट लॉजिकली करेक्ट आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे आपको लॉजिकली करेक्ट conclusions find out करने, you have to find the logically correct conclusion. Now statement is what? Statement is an information or a fact related to any general subject that could be. Now conclusion is what? A conclusion is said to be hidden because it is generally understanding taken from given statement. यहाँ पर general understanding होती है, that is आप statement में से क्या समझे, आपको क्या समझ में आया, that is a conclusion. Now see, take an example. An apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. Now what exactly you can conclude from this? ये statement से आप क्या conclude कर सकते हो? There is a thing, apple is a good for health. Yes, because an apple a day keeps the doctor away. That means आपकी health जो है वो हमेशा अच्छी रहती है. That is, so अगर health अच्छी रहती है, that means apple is good for health. अगर डॉक्टर अवे रहता है, अगर हेल्थ अच्छी रहती है, दैट मीन्स एप्पल इज व्हाट? गुड फॉर हेल्थ. दैट्स अ कंक्लूजन. सो इट इज इजी. नाउ हियर व्हाट यू डिड, आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई और उस स्टेटमेंट में से आपने एक कंक्लूजन निकाला. व्हाट इज दैट? कि एक जो एक्शन हुई, उस एक्शन में जो आपको रिजल्ट मिलता है दैट इज डॉक्टर अवे. अब डॉक्टर अवे का एक रिजल्ट है. डॉक्टर अवे रहना मतलब क्या? आपकी जो हेल्थ है वो बड़ी अच्छी है, राइट? अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, दैट मीन्स एप्पल इज अ गुड फॉर हेल्थ. दैट इज अ कंक्लूजन. सो सिंपल. नाउ you're it's easy to understand. So apple is a good for health, that is a conclusion. How you are, आप कैसे इसको फाइंड आउट कर रहे हो? जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट, जस्ट बाय रिलेटिंग द इवेंट गिवन इन द स्टेटमेंट. दैट इज नेक्स्ट. Statement and assumption. In the statement and assumption question, again question is given. Now question is what? Statement. The given statement is your question, right? Followed by few assumptions made on the basis of them. कुछ assumptions दिए रहेंगे and identify what? Logically correct assumptions. Here the statement is what? Again fact related any general subject. See everywhere आपको यही डिटेल मिलेगी, हर स्टेटमेंट में आपको यही डिटेल मिलने वाली है. Now next is assumption. An assumption is said to be hidden because it is generally assumed, supposed or taken for granted. It is missing link that is left unsaid, therefore assumed. मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोली गई है उसके बिहाइंड कुछ ना कुछ अजम्पशन होगा, कुछ ना कुछ एक आइडियल होगा जो वहां पे अज्यूम किया रहेगा. वो अजम्पशन हमें अंडरस्टैंड करना है. व्हाट कुड बी द लॉजिकली करेक्ट अजम्पशन? नाउ हियर इट इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द स्टेटमेंट? इट इज इंपॉर्टेंट टू पुट द चाइल्ड इन द स्कूल एट द एज ऑफ 5 और सो. मतलब जब एक छोटा बच्चा 5 साल का हो जाता है या 5 से ऊपर की एज का हो जाता है तो उसे स्कूल में डालना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट है. ना व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इसके बिहाइंड जो अजम्पशन है ना, ऐसा जो स्टेटमेंट बोला गया कि एक चिल्ड्रन को, एक छोटे बच्चे को, एक चाइल्ड को 5 साल या 5 साल के बाद स्कूल में डालना इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोलने के पीछे क्या अजम्पशन था? क्या उस ऑथर ने सोचा कि उसने ये बोला कि ये इंपॉर्टेंट है? क्या ऐसी सोच थी, क्या थॉट प्रोसेस थी? वो थॉट प्रोसेस का आंसर हमें यहाँ पे देना है. सो नाउ यू हैव गिवन अ 5 ऑप्शन समथिंग लाइक दिस. अब एग्जांपल ले लो कि आपके सामने 5 ऑप्शंस दिए हैं एंड देयर इज अ वन असम्पशन गिवन दैट इज एट दैट एज द चाइल्ड रिचेज एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज रेडी टू लर्न. नाउ यहाँ पे क्या बोला गया कि एट दैट एज वो जो चाइल्ड है 5 साल का जब हो जाता है या फिर 5 के ऊपर के एज का हो जाता है, सो वो चाइल्ड एक डेवलपमेंट, उसका एक माइंड जो है वो डेवलप्ड हो चुका है इस लेवल तक, एक अप्रोप्रिएट लेवल तक डेवलप हो चुका है कि वो सीख सकता है. ही इज रेडी टू लर्न, दैट चाइल्ड इज रेडी टू लर्न. दैट इज एन अजम्पशन बिहाइंड इट. सो लॉजिकली करेक्ट अजम्पशन है बिकॉज जहां पर भी एक स्टेटमेंट आपको दिया है उस इवेंट के पीछे जो परफेक्टली प्रैक्टिकली मैचिंग स्टेटमेंट होगा, प्रैक्टिकली मैचिंग इवेंट होगा उसके बिहाइंड, वहीं उसका प्रैक्टिकल अजम्पशन हो सकता है और वहीं उसका करेक्ट आंसर भी हो सकता है. सो यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या राइट है कि यस, एक 5 साल के एज का जो बच्चा होता है उसकी इतनी डेवलपमेंट होती है कि वो कोई भी चीज आपसे सीख सकता है. अगर आप उसको कुछ भी बोलो वो सीख जाएगा. दैट इज अ प्रैक्टिकल अजम्पशन. सो हियर इट इज गिवन and that assumption is logically correct. Now moving ahead to the last part, statement and inference. What is a statement and inference? See again in the question you have a given one statement, आपके पास एक statement होगा, then few inferences, कुछ inferences रहेंगे and then logically correct inference आपको find out करना है. Statement is what? Generally information or fact related to any general subject, right? Now
Inference is what? An inference is understanding or opinion that we inferred from the given statement. मैंने पहले ही बोला, जो लर्निंग आप लेते हो ना, उन लर्निंग्स के ऊपर आप जो भी ओपिनियन फॉर्म करोगे, दैट ओपिनियन इज एन इन्फरेंस. वो ओपिनियन क्या होता है? इन्फरेंस होता है. नाउ सी एग्जांपल. Statement given, nowadays the sell of Apple company product has increased in India. अगर मैं बोलता हूं किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का जो सेल है वो इंक्रीज किया, दैट मीन्स व्हाट? उन्होंने अपना जो एक मार्केट है, जो इकोनॉमी में या फिर मार्केट में जो अपना एक प्रोडक्ट बेस है वो बढ़ाया. अब उनके कस्टमर बढ़ गए. अगर प्रोडक्ट सेल हो रहा है दैट मीन्स उनका सेल हो रहा है, तो उनका सेल हो रहा है तो कस्टमर भी तो बढ़ रहे हैं. अगर कस्टमर बढ़ रहे हैं दैट मीन्स स्पैन ऑफ बिजनेस हो रहा है. स्पैन ऑफ बिजनेस हो रहा है दैट मीन्स व्हाट? बेसिकली एंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उनका प्रोडक्ट मार्केट इंक्रीज हो रहा है. प्रोडक्ट मार्केट इंक्रीज हो रहा है. सो सी, ये तो मैंने प्रैक्टिकली बोला, एक प्रैक्टिकली मैंने एक आइडिया लिया इस स्टेटमेंट से. नाउ देयर इज अ सम इन्फरेंस गिवन टू यू. नाउ आपको वहां से अगर फाइंड आउट करना है, एंड देयर इज अ वन स्टेटमेंट हियर, इन्फरेंस इज हियर, एप्पल कंपनी इज एक्सपांडिंग देयर प्रोडक्ट मार्केट इन इंडिया. यस इट इज राइट, बिकॉज यहां पर भी किसी प्रोडक्ट का सेल इंक्रीज होता है, उनका कस्टमर बेस बढ़ता है. कस्टमर बेस बढ़ता है दैट मीन्स दे आर एक्सपांडिंग इन द मार्केट. उनका जो प्रोडक्ट रेंज है, उनकी जो कस्टमर रेंज है वो एक्सपांड हो रही है मार्केट में. दैट मीन्स व्हाट? दे आर एक्सपांडिंग देयर प्रोडक्ट मार्केट in that particular area. So in this case Apple company is expanding their product market in India. I hope guys you have understand what exactly the critical reasoning, how to solve it. I hope I made you clear that how easily you can solve the critical reasoning and what exactly the basic crux of it. Now this is the first part of the critical reasoning where I have given you the introduction of the critical reasoning, the topic understanding and the crux of the critical reasoning. So in this part 1 we'll learn how to approach critical reasoning and how to solve the critical reasoning question with the A's. What are the type of the critical reasoning questions? So try to solve it, practice on your own, and in the next video we will be practicing some questions. So that's it for the part 1. Be with us. Thank you.